Start. Good evening to everybody. Sorry, good morning to everybody. I started wrongly. Good morning to everybody. As you know, we have gathered here to celebrate the legends of cinema. This is the first time we are collaborating with somebody, and we are collaborating with New Delhi Film Foundation. This program is organized by Srijan Samvad, and as we know, Srijan Samvad is dedicated to literature, cinema, and other kinds of arts. We have every month meeting. Sometimes we discuss about literature, a different language literature, different countries' literature. Sometimes we discuss about films, and sometimes we have program dedicated to arts like dance form or artists are coming and talking on this platform. This is our 113th meeting, and today we are going to discuss about the film directors who made classical films, who put the Indian cinema on the world map. And we have 4 speakers here today. They are expert in their uh, writing in cinema, in other genre. Now, 4 speakers we have. I'll be introducing them in detail when they come for talk. But we have 4 people here to speak. That is Mr. Manmohan Chadha, Mr. Amitabh Nag. Then we have Amitabh Ghosh, who is right now hasn't joined because he is traveling in some remote village. Then we have Amrendra Kumar Sharma, who is also traveling, but he'll be joining very soon. Then we have here Dr. Neha Tiwari, and I'm Vijay Sharma. We all are connected with the films. And today we are going to listen to the speakers, so I won't be speaking much. Now, our first speaker is Mr. Manmohan Chadha. Now, Manmohan Chadha ji, he is very deeply in cinema. Although he has written only books, he can write many more books, but somehow he is not writing, although he is day and night with cinema. He taught in Pune, FTI. He was connecting with their magazine. He was connected with many serials on Doordarshan. His 2 books, one which is a compulsory text in all the cinema study centers, is Hindi Cinema Ka Itihas. हिंदी सिनेमा बहुत समय से, जब से सिनेमा की शुरुआत हुई है, सिनेमा भारत में भी बन रहा है, लेकिन जब लिखने पढ़ने की बात आती है तो हमारे पास अच्छे टेक्स्ट की बहुत कमी है। चड्ढा जी की किताब हिंदी सिनेमा का इतिहास इसकी काफी हद तक पूर्ति करता है, लेकिन मैं समझती हूँ ऐसी और बहुत सारी पुस्तकें आनी चाहिए। उनकी एक और किताब है सिनेमा से संवाद, वो हाल ही में आई है।
He got silver peacock as a cine critic, and he got golden peacock as a cine writer. He is very much concerned with the serious cinema. He is deeply involved in cinema. Today he is going to talk about Dada Sahab Phalke. So I welcome him, Mr. Manmohan Chadha. Please come and share your thoughts. आज मुझे दादा साहब फाल्के पर बोलने के लिए विजय शर्मा जी ने आदेश दिया है, इसलिए मैं कुछ अपनी जो मेरी जानकारी है दादा साहब फाल्के के बारे में वो आपके साथ शेयर करूंगा। दादा साहब फाल्के का निधन 1944 में हुआ और जैसे कि कहा जाता है और ये बात है कि वो गुमनामी में उनका निधन हुआ। और दूसरा जो जोड़ दिया जाता है फिल्मी हस्तियों के साथ खास तौर पर, और वो एक रोमांस सा जुड़ा हुआ है कि फिल्मी हस्ती जो होती है उसके साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं कि वो बहुत अमीर लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, इसलिए अंग्रेजी के कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो पॉपर मरे या वो बड़े गरीबी में रहे और बड़ी उनकी दुर्वस्था हुई। लगता है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है इनकी। विजय जी, आप चाहें तो अमिताभ नाथ पे जा सकती हैं इस वक्त, या आप कहें तो मैं आके बोल देता हूँ। जी हाँ, आप ही बोलिए। नमस्कार, मुझे लगता है कि कुछ सिग्नल्स की प्रॉब्लम है जो कि भारत में बहुत आम है वाईफाई और इंटरनेट को लेकर। अभी भी हम जूझ रहे हैं, भले 5G की तैयारी कर रहे हो। तो इस बीच कनेक्शन की थोड़ी प्रॉब्लम है। मनमोहन चड्ढा साहब मुझसे जुड़ नहीं पा रहे थे, वो दोबारा जुड़ गए हैं। चड्ढा साहब, आपको आवाज आ रही है क्या? मुझे तो आपकी आवाज आ रही है और मुझे लगता है कि आप तक पहुंच रही है। जी हाँ, कुछ मेरे ख्याल से सिग्नल की प्रॉब्लम थी, आप हमसे डिस्कनेक्ट हो गए थे। अब आप दोबारा प्रॉब्लम शायद कभी कभी आप जैसे सबके साथ ही हो रही है कर रही है बीच बीच। चड्ढा साहब प्लीज शुरू करें। जैसे विजय जी का इमेज स्टेबल हो रही है बीच बीच में, ये करेगा थोड़ा बहुत। तो शैल आई स्टार्ट? जी हाँ। तो जब दादा साहब फाल्के का निधन हुआ तो उनकी बेटी लिखती हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे और बहुत उत्साही थे, तब भी कोई उनका उत्साह मन नहीं हुआ था और शरीर से भी वो ठीक थे। कुल मिलाकर यह तो अवश्य हुआ कि 1944 में उन्हें भुला दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों का राज था और सिनेमा के प्रति हमारा वैसे भी कोई खास प्रेम कभी रहा नहीं है। तो ये बात सही है कि 1944 में वो गुमनामी रही और थोड़ा वो फिल्म वालों का रहता ही है एक दूसरे के प्रति। लेकिन जब 1970 में दोबारा फिल्म के अध्ययन की बात आरंभ हुई, जैसे कि
61 में जब फिल्म इंस्टीट्यूट आरंभ हुआ और 64 में जब फिल्म आर्काइव आरंभ हुआ, तब ये बात आरंभ हुई कि हमारे जो फिल्म की धरोहर है उसे संभाल कर रखा जाए। और तभी हमने ये भी महसूस किया कि हम अपनी धरोहर खो चुके हैं। हमारी बहुत सारी फिल्में पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं और ख़ास तौर पर साइलेंट सिनेमा की जितनी भी फिल्में थी वो तो निश्चित ही नष्ट हो चुकी थी। और बाद की भी फिल्में 30 से 40 की फिल्में भी अगर आप देखें तो शायद 50% फिल्में नष्ट हो चुकी हैं और 40 से 50 की भी तो वो नष्ट करने में की कला में हम माहिर हैं। तो हमने कुछ नष्ट वष्ट कर दिया सारा और उसके बाद कहीं खोज शुरू हुई कि दादा साहब फाल्के की कुछ फिल्में मिलें या साइलेंट जो हमने फिल्में बनाई या जो भी फिल्में हमने बनाई हैं उनके जो प्रिंट हैं वो अवेलेबल नहीं, उनके प्रिंट्स की क्या हालत है। क्योंकि फिल्म जो है हमारी वो किताब की तरह नहीं है, फिल्म में प्रिंट का बहुत अधिक महत्व है। फिल्म जिस सेलुलॉइड पर प्रिंट होती है, जिस फोटोग्राफ में होती है, वो उसी से वो खुद को अभिव्यक्त करती है। तो सन 64 के बाद थोड़ा बहुत ये शुरू हुआ, क्योंकि मेरा ख्याल है जब 1955 में भी दिल्ली में एक फिल्म कॉन्फ्रेंस हुई जो बहुत बड़ी फिल्म कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी दादा साहब फाल्के का जिक्र कहीं नहीं हुआ। उसमें काफ़ी बातें हुई और 1955 की जो कॉन्फ्रेंस हुई वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो किसी नतीजे पर शायद नहीं पहुंची। वो सिर्फ ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने सोचा या और लोगों ने कहा और उन्होंने बात मानी और एक फिल्म इंस्टीट्यूट खुला और एक फिल्म आर्काइव खुला। लेकिन जो 1955 में बात हुई थी वो बात हुई थी राष्ट्रीय फिल्म अकादमी खोलने की, और राष्ट्रीय फिल्म अकादमी दिल्ली में ही खोली जानी थी और दिल्ली में ही बिल्कुल साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी की तरह ही फिल्म अकादमी भी खोली जानी थी, जो कुछ लोगों के विरोध के कारण नहीं खोली। वो शायद वो बम्बई में चाहते होंगे या जो भी है, लेकिन अगर वो दिल्ली में खुलती और बिल्कुल उसी बिल्डिंग में होती जहाँ हमारी साहित्य अकादमी ललित कला अकादमी है, तो सिनेमा की बहुत प्रगति होने में हमें मदद मिलती सिनेमा की पुस्तकों में। तो हुआ ये कि 1969 में जब हमने दादा साहब फाल्के पुरस्कार देना शुरू किया तो दादा साहब फाल्के की बात आई, और तब तक नायर साहब जो हमारे थे, उमेश कृष्ण नायर फिल्म आर्काइव के, वो कुछ फिल्मों की खोज कर रहे थे और एक आधा टुकड़ा उन्हें राजा हरिश्चंद्र का मिल भी गया था। तो तब से ये बात आई शुरू हुई कि दादा साहब फाल्के के बारे में, और फिर कि कौन पहला फिल्मकार होगा इसकी भी बात उठी। तो कुछ लोगों ने तोरणे का नाम लिया, जो तोरणे किसी तरह से भी डिजर्व नहीं करते थे। वो एक पैसे वाले आदमी थे और उन्होंने कोई ब्रिटिश कैमरा हायर किया था और पुंडलिक नाम का एक नाटक था, उससे वो उन्होंने कहीं जाकर उसको थोड़ा सा अंकित किया यानी। तो लेकिन ये बात आती है कि भाई तोरणे की पुंडलिक भी आ चुकी थी। तो इस तरह से दादा साहब फाल्के हमारे प्रथम फिल्मकार माने गए। और जब हम दादा साहब फाल्के के बारे में जानने लगे और जानते रहे, इसके बारे में हमारी नई पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसका मैं अभी आपको बताऊंगा कि काफ़ी उन लोगों ने काम किया इसके बारे में। सबसे बड़ा काम तो खैर नायर साहब ने ही किया। तो दादा साहब फाल्के का जो जीवन है वो पूर्णतया एक क्रांतिकारी सोच वाले व्यक्ति का जीवन रहा है।
वो आरंभ से ही एक कहीं टिक कर न रहने वाले और कला के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व थे। उनका जन्म आप जानते ही हैं नासिक के त्र्यंबकेश्वर में हुआ था, और त्र्यंबकेश्वर बहुत प्रसिद्ध जगह है। आप जानते हैं कि ऋषि गौतम और अहिल्या की कथा वहां से जुड़ी हुई है, जो पाषाण का और गोमती का उद्गम वहां से है। और त्र्यंबकेश्वर गांव अपने आप में आज भी ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गांव है, और वहाँ ब्राह्मणों का बहुत वर्चस्व है और उनकी बड़ी अच्छी कमाई है। लेकिन दादा साहब फाल्के के जो पिता थे दाजी शास्त्री, उन्हें बम्बई में नौकरी मिल गई, कि भारतीय सिनेमा का सौभाग्य माना जाएगा। विल्सन कॉलेज में वो आ गए, और वहाँ फिर 15 साल की उम्र में दादा साहब फाल्के ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में ड्राइंग सीखना आरंभ किया। जे स्कूल ऑफ आर्ट भी हम जानते हैं कि इसलिए अंग्रेजों ने शुरू किया था, ताकि जो अंग्रेज लोग आते थे इंग्लैंड से, अंग्रेज यहाँ राज्य करने या जिस ढंग से भी एडमिनिस्ट्रेटर, उनमें जिन लोगों की कला में रुचि होती थी, जो ड्राइंग वगैरह करना चाहते थे, उन्हें असिस्टेंट मिल सकें, उन्हें कुछ सहायक मिल सकें, इसके लिए जे स्कूल ऑफ आर्ट आरंभ किया गया था। और उसमें 15 साल की उम्र से लोगों को लिया जाता था कि ताकि वो ड्राइंग वगैरह कर सीख लें और कुछ ईजल वगैरह उठाना सीख लें और इस तरह की चीज़ें कर लें, ताकि 18 साल की उम्र से फिर वो असिस्ट कर सकते थे जो अंग्रेज़ों को, जो अंग्रेज शौकीन थे थोड़ी बहुत ड्राइंग वगैरह करने के। तो 15 साल की उम्र में ये करने के बाद वे फिर कला भवन में चले गए। आप जानते हैं कि बड़ौदा एक जमाने में संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, और महाराजा जो थे वहाँ के, वो संस्कृति को बहुत प्रश्रय देते थे, जो आजकल बारे में काफी कम हो गया है कि जो हमारे पूंजीपति वगैरह हैं वो संस्कृति को प्रश्रय नहीं देते हैं। लेकिन एक पुरानी परंपरा भारत में रही है, जहाँ राजाओं ने, जैसे हमारे हीरालाल सेन थे, तो उन्हें भी राजाओं ने ही काफी मदद की थी। तो वहाँ के कला भवन में वे काम करने लगे, और कला भवन में वो सीखने लगे। वहाँ उन्होंने छायांकन सीखा, और वहाँ का जो छायांकन विभाग था उसे संभालने लगे। ये बात आप समझ लीजिए कि 1990 के आसपास की बात है, ये 90-95 के आसपास की बात है, 95 उन्हीं 1890 में इनका जन्म हुआ था 1870 में, और अरविंद का जन्म हुआ था 1872 में। तो उस समय संयोगवश ये दोनों लोग, अरविंद भी और दादा साहब धुंधीराज गोविंद फाल्के भी, दोनों ही बड़ौदा में थे, और बड़ौदा के महाराजा के उसमें मतलब काम कर रहे थे। अरविंद ब्रिटिश लोगों की तरफ से थे, और वो उनका हिसाब किताब संभालते थे। और अरविंद हमेशा, हम जानते ही हैं कि बहुत बड़े जीनियस शुरू से रहे, लेकिन ये दादा साहब फाल्के छायांकन विभाग संभालते थे, और ये निश्चित है कि इन दोनों में कभी कोई मुलाकात नहीं हुई होगी। अगर कोई मुलाकात होती तो शायद और ज्यादा कुछ बातें हो जाती, पर ये एक संयोग बहुत बड़ा है कि तीन लोग जो थे, तीनों लोग बड़ौदा में एक समय में मौजूद थे, भले ही वो आपस में नहीं मिले, राजा रवि वर्मा, अरविंद और दादा साहब फाल्के। तो ये एक बड़ी चीज है जो मुझे थोड़ा सा पढ़ते कहीं ऐसी महसूस थी। तो उसके बाद राजा रवि वर्मा जो थे, वो अपनी प्रेस उन्होंने लगा ली, लिथो प्रेस, और उसमें वो अपने कैलेंडर वगैरह बनाने लगे। ये काम उन्होंने किया लोनावाला में। उस जमाने में लोनावाला में उनकी प्रेस लगी, और उस जमाने में पत्थर पर वो उकेरते थे
अपनी जो ड्राइंग्स वगैरह होती थी, और उस पत्थर से फिर वो बनाते थे 3 रंग की कैलेंडर्स, जितना मुझे अपनी सीमित जानकारी में पता है। तो लोनावाला में का पत्थर भी बहुत अच्छा माना जाता है, और जो इलाका है हमारा सह्याद्री का इलाका, इसका पत्थर सबसे मजबूत पत्थर माना जाता है। कर्नाटक के लोग हैं वो भी जानते हैं, कर्नाटक में भी जो खनन उद्योग है उस वजह से समस्याएं भी हुई हैं और समृद्धि भी बहुत आई है। तो ये जो था, यहाँ इस काम करने लगे दादा फाल्के, राजा रवि वर्मा के साथ, और यहाँ उन्होंने काम किया और प्रिंटिंग में वो माहिर हो गए। और प्रिंटिंग में माहिर होने के बाद वो प्रिंटिंग में बहुत मदद की उन्होंने राजा रवि वर्मा की। लेकिन राजा रवि वर्मा ने 1906 में उनका निधन हो गया, और निधन से पहले ही उन्हें भले ही इल्हाम हो गया या कुछ भी हुआ, लेकिन अपने निधन से लगभग 2-3 महीना पहले उन्होंने प्रेस बेच दिया और प्रेस बंद कर दिया। तो एक और जो इसके साथ जुड़ी या कहानी रोचक सी, वो ये कि वो जो पत्थर पर उकेरते थे राम और सीता की आकृतियां, और ये सब काफी, आप जानते हैं राजा रवि वर्मा का काम बहुत बड़ा काम था, और सैकड़ों उनकी पेंटिंग्स हैं, और जिनमें वो बहुत माहिर थे। और वो जो पत्थर थे, वो जब इस्तेमाल हो जाते थे, जब वो कैलेंडर बन जाता था, तो उसके बाद वो बाहर रख दिए जाते थे प्रेस से, और जो स्थानीय गांव वाले थे वो उन्हें उठा के ले जाते थे और अपने मंदिरों में, अपने गांव में जाकर उन्हें स्थापित कर देते थे। तो वो शायद कोई अगर खोजी आदमी हो या कुछ इसमें किसी तरह की रुचि ले, वैसे हिंदुस्तानियों को ये सब चीजें बड़ी फालतू सी लगती हैं, और इस समय व्यर्थ भी नहीं करते हैं, क्योंकि क्लर्की करना ही ज्यादा अच्छा रहता है। सरकारी नौकरी आप करो, 2.5 लाख रुपए महीना लो और जिंदगी गुजारो। तो दादा साहब फाल्के जो थे, वो इस मामले में हमेशा ही बहुत कमाल के आदमी रहे कि वो 3 साल से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं थे। उनके स्वभाव में ये बात थी, और शायद इसीलिए उन्होंने सिनेमा का आविष्कार भी किया भारत में। तो वहाँ जब ये प्रेस बंद हो गई इनकी, तो वहीं एक दूसरी प्रेस, लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस खोली। साहब फाल्के भी पार्टनर थे, और कहीं और थे, और ये लोग अपनी प्रेस में अपनी प्रिंटिंग का काम करने लगे उसी तरीके से। ये इससे पहले दादा साहब फाल्के जो थे, जब बड़ौदा में ही थे, तो उनकी जो पत्नी थी उनका निधन हो गया था 1899 में, 1898 में। और फिर 1902 में उन्हें एक और मतलब वो मिला कि वो विवाह कर सकते हैं किसी एक लड़की का, जो 14 वर्ष की थी उस समय। और उसके पिता जो थे वो थोड़े अमीर आदमी थे, लेकिन 14 साल की लड़की और 32 साल का पुरुष, तो दादा साहब फाल्के को स्वीकार नहीं था। लेकिन उस जमाने में आवाज आ रही है? हेलो। चड्ढा जी, हाँ जी, हम लोग आपके हाँ पास जी, फिर आएंगे। हाँ, मैं ठीक है समझती हूँ कि हाँ, थोड़ी देर बाद आपके पास फिर हम लोग आएंगे। जी। ठीक है। तो हाँ, अभी बहुत आप अच्छा दूसरे चल। स्पीकर। ठीक। जी जी हाँ। जी। चड्ढा जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो बहुत कम लोगों को ज्ञात होती हैं। जो सिनेमा से जुड़े हुए, गहराई से जुड़े हुए लोग हैं उनको शायद मालूम होगा, अन्यथा लोगों के लिए बिल्कुल ही नई बातें हैं, और इन बातों का जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपनी विरासत को नहीं जानेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन समय सीमा को देखते हुए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता की ओर चलते हैं।
And our next speaker is Mr. Amitabh Nag. He is an independent writer. He writes poetry, short stories, and of course, cinema. He has written many books of poetry, short fiction, and cinema. Especially cinema, I will mention here. He has written many books on cinema. Some are the Cinema of Tapan Sinha, on which he is going to speak. The full name of the book is The Cinema of Tapan Sinha, an Introduction. Apart from this book, he has written Satyajit Ray's Heroes and Heroines. This book I have read, I have with me this book, and very interesting book. Then he has written Beyond Apu, 20 favorite films of Soumitra Chatterjee. And another book is Smriti Satta O Cinema. And one more book, 16 Frames, his first anthology of English poems translated by him of Soumitra Chatterjee. There are other books also. He is very much with films. He has started a film magazine called Silhouette, and he has his website. You can avail more information regarding his work and his profile on his website. That is amitabhnag.net. And here he is going to speak on Tapan Sinha, on which he has written a book. So now I invite him to speak on Tapan Sinha, Mr. Amitabh Nag. Namaskar. Good morning to everyone, and thank you, Ms. Sharma, for introducing me. I will start by saying that I will be not comfortable speaking in Hindi, so I will prefer speaking in English. My native language is Bangla, but I think I may interest, because the names of the films will be in Bangla, so those words will be in Bangla. No problem. So, Mr. Chadda started off with Dadasaheb Phalke. I think any discussion on Indian cinema starts with him. Even if we have certain controversies as who is the father, as some section of the audience also believes that Hiralal Sen may also be thought of as the father of Indian cinema. But let's not go into the controversy. We are talking about Tapan Singh, who incidentally got the Dadasaheb Phalke Award in 2006. Tapan Singh is very interesting in the sense that he was a filmmaker whose films were quite popular in Bangla at a time, and yet he has been conveniently and comfortably forgotten only 20 years or 15 years after he passed away in 2009, so that is only 13 years. And he started making films in 1954 with his first Bangla film Ankush, and his last film was in 2000, Anokha Moti, which was in Hindi. The reason Tapan Singh is very unique is because he had always been bracketed with filmmakers where he shouldn't have been. He should have been, as per me, bracketed with Satyajit Ray, Hrithik Ghatak, and Mrinal Sen. But the politics of film criticism is such that we always bracket, we always create binaries, we create that this is better, he is better than someone else, and vice versa. So that is the unfortunate thing which had happened with Tapan Singh. And the reason I'm saying is that he should be bracketed with Hrithik Ghatak, Mrinal Sen, and Satyajit Ray is simply because his films, like Satyajit Ray's films, his films had a classical touch. His earlier films, based on literature, the literature of Rabindranath Tagore and Sharat Chandra Chattopadhyay, his early films were very much dependent on literature. And he's somewhere down the line, since the 70s, like Satyajit Ray and like Mrinal Sen, he also made his own Calcutta trilogy,
which very few people even mention. So he made 3 films, Apunjon, Ekhoni, and Raja, around about the same time. So late 60s and the early 70s, mid 70s. So Kolkata and West Bengal was going through a lot of revolutionary activities at the time during the Naxalite movement. And that was reflecting in the films of Satyajit Ray through his trilogy, and also in the films of Mrinal Sen through his trilogy. And Tapan Singh also had his own. But what makes him so unique is that in the 1980s, he makes another trilogy of sorts, which I named as the Conscience Trilogy through Adalat O Ekti Meye, Atonko, and Antardhan. At that time, the reality of those films, the first one, Adalat O Ekti Meye, is about a gang rape in the sea beaches, and the court case which happens afterwards. And Atonko is about an old school teacher who saw a political murder, and how he and his family was traumatized. And later on, at the end, his daughter was attacked through acid attack. So those realities in the early 80s, those films which are made on these themes in the early 80s, were heavily criticized, saying that these things don't happen. And he drew his inspiration of his stories all from the newspaper clippings and stuff. So he had this very intelligent journey from the literary classics to the real situations which he can see all around him, and building stories. And if we think now in 2022, these realities are all around us. So it may so happen that a gang rape in 1982 may be a rare event, but it did happen, and that's why he made a film based on the newspaper clippings. But today, if we see the situation in India, so he was ahead of his times. So he was making literary classics, which were films which were of a time which was last centuries or so on and so forth. And he also made films on certain realities which became harsh truths 20, 30, 40 years hence. So that is the reason why I'm saying that he is such a socially conscious filmmaker that he should not be bracketed with people like Ajoy Kaur, Ashit Sen, and Torunu Majumdar, the Bengali filmmakers I'm referring to, because at that time, in the late 60s and 70s, Ajoy Kaur was still making films from Sharat Chandra's Parinita or Rabindranath Thakur's Mallodan. Ashit Sen was making Hindi films with Rajesh Khanna, the tear jerkers like Safar or Khamoshi. And Torunu Majumdar was making juvenile films like Balika Bodhu and Sriman Prithviraj. So Tapan Singh's social consciousness made him make films from the late 60s onwards, where there was a lot of angst. Now, in terms of the popularity, his biggest problem that his films were extremely popular, and we have a certain understanding of film criticism, mostly governed by film critics who had a leftist lineage, is that if it has to be popular, that means it is bad or it is shallow. I think Tapan Singh paid this price throughout his life because his films have been immensely popular. His films have been awarded in Berlin. He was the filmmaker whose films got the most national film awards by Bengali filmmakers after Satyajit Ray. But irrespective of that, he fell out of favor with the film society, film critics. So I think that is extremely unfortunate on Tapan Singh's part, and it is a big crime for film critics like us who are still writing not to showcase his cinema. And he made 31 Bangla films and 6 Hindi films. Even if we look at 2 of his Hindi films, Ek Doctor Ki Maut, which was made in 1991, and a short film called Admi Aur Aurat in 1982, I think these 2 films will appear in any collection of Hindi films by throughout the decade. So Ek Doctor Ki Maut is a good Hindi film by any standard. So not only that, his Bangla films, a lot of Bangla films were exceptionally made, and mind you, he did not take
the common accusation against the mainstream filmmakers is that they make their films successful with the popular film stars. But biggest Bengali film actor, biggest Bengali male film star was Uttam Kumar. Now, out of his 31 films, Tapan Singh, he only took Uttam Kumar thrice, and he never took Uttam Kumar and Suchitra Sen as the leading pair of Bangla cinema in any of his films. So he didn't need popular film stars to make his films popular. He was successful. His films were successful because of the narrative, and he always made linear narrative films. So his films were simple in that sense. But he didn't depend on the star power to make his films successful. Throughout his life, his films were successful because of his own brand of storytelling. Only one, in the context of Hindi cinema, I think he can be comparable with Bimal Roy, but Bimal Roy only made half of the films which Tapan Singh made. Bimal Roy made around 19 films, and Tapan Singh made around 37 films, so it's almost half. I don't consider Hrishikesh Mukherjee even at par with Tapan Singh, simply because Golpo Holeo Shotti is what Hrishikesh Mukherjee could churn out as Bawarchi. If you watch both the films, you will understand that there is a difference. Even Gulzar tried the Aponjon, but as Mere Apne. But you will, or later Jyotu Griho as Ijazat. But the positioning of Tapan Singh, not only in Bangla cinema, but in the context of Indian cinema, is very unique. I think I will stop at this, and then subsequently we can take this discussion further, because I think I overstepped my time as well. Sure. If I speak in Hindi, I understand you understood. Yes. You understand I do Hindi? understand. Okay. Yes. Yeah. चड्ढा जी ने कहा कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं चीजों को भुला देने में, नष्ट करने में, और आपने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमने तपन सिन्हा को जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं दिया है, और आपने बहुत खूबसूरती से उनका महत्व स्थापित किया है. हाउ ही इज पार with great cinema makers, like you have compared him with Satyajit Ray and Mrinal Sen. Nobody put them on the same pedestal, but you establish him at the same pedestal. That is very good. And in Hindi, everybody who loves the film has seen Ek Doctor Ki Maut, and that is really a wonderful film. एंड क्रिटिक के रूप में जो हमें करना चाहिए, असल में हम वो पूरा नहीं कर रहे हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है. एंड यू सेड दैट तपन सिन्हा वाज अहेड ऑफ हिज टाइम, बिकॉज 82 में उन्होंने जिस विषय पर फिल्म बनाई वो आज हम रोज देख रहे हैं. एंड ही डिड नॉट डिपेंड ऑन द लिटरेचर, बट ही टुक द रियल इंसिडेंट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड ही मेड द फिल्म्स. So these are the things you said, and I'm sure the people who are here will be benefited by that, because very few people talk about Tapan Sinha. So thank you very much. We'll move, and still I don't see that Amitabh Ghosh is here. And Amrendra Sinha, so I don't see. Let me just see. Amrendra Sinha is also not there. So I'll go back to Mr. Manmohan Chadha again for 15 minutes. Mr. Chadha, you can continue, please. जी धन्यवाद. तो 1902 में दादा साहब फाल्के ने दोबारा विवाह किया सरस्वती बाई के साथ, और जैसा हम जानते हैं कि सरस्वती बाई ने उनकी बहुत अधिक
मदद की, वो उनके साथ हमेशा खड़ी रही। जबकि वो 14 वर्ष की थी 1902 में, लेकिन 1910 में वो 24 वर्ष की जब थी और दादा फाल्के 40 पार थे, तो उस समय वो उनके साथ खड़ी रही और उनके फिल्म मेकिंग के काम में उन्होंने बहुत ज्यादा उनकी सहायता की। तो 1902 में जिस व्यक्ति से विवाह किया था उनके ससुर ने अपनी बेटी का, वो तो एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था, प्रिंटिंग प्रेस में भागीदार था। और 1906 से आगे भी, और 1907 में जैसा कि हम उनका स्वभाव देखते हैं कि उनकी बनी नहीं अपने जो प्रिंटिंग प्रेस के साथी थे, उनका एजेंडा अलग था और इनका एजेंडा अलग था, तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया था और प्रिंटिंग प्रेस से अलग हो गए। और 1910 में वो बिल्कुल बेकार थे और इससे उनके ससुर भी नाराज थे। और 1910 में जैसा कि हम जानते हैं कि एक ईस्टर के दिन जो लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म दिखाई जा रही थी बम्बई में, वो फिल्म उन्होंने देखी और उस फिल्म को देखने के बाद उन्हें लगा कि हम भी कृष्ण पर और राम पर, उनकी कथाओं पर फिल्म बना सकते हैं। और ये बात जब उन्होंने अपनी पत्नी से बताई तो पत्नी भी कांप गई कि ये कुछ नया शौक इन्हें चढ़ाया है और इससे और ज्यादा नुकसान होगा और ये ढंग का कोई काम करने की बजाय इस तरह के किसी काम में लग जाएंगे, जो कि वो लग गए। तो वो लगभग हर फिल्म उस समय तक 1910 तक तो बम्बई में बहुत फिल्में आने लगी थी और हमारे यहाँ जितनी भी फिल्में आती थी सभी फिल्में इंग्लैंड से आती थी। और इंग्लैंड से आने के कारण हमें बहुत नुकसान भी हुआ कि हमने कभी भी कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी नाम की फिल्म हमारे यहाँ नहीं आ पाई। इसीलिए नहीं आ पाई क्योंकि हम इंग्लैंड के लोग जो भी भेज देते थे, इंग्लैंड के एजेंट जो भी भेज देते थे, वो हम देखते थे। लेकिन जापानी लोग ऐसा नहीं करते थे। जापानी लोगों के अपने प्रतिनिधि, 2 प्रतिनिधि जापान की फिल्म इंडस्ट्री ने नियुक्त कर दिए थे उसी समय। और वो वहां जाकर, और आप जानते थे कि 1910 के आसपास 1911 में सारे इटली वगैरह, फ्रांस, हॉलीवुड, हॉलीवुड तो था नहीं, अमेरिका वगैरह में भी फिल्में खूब बन रही थी और एक तरह से सब्जी मंडी की तरह इंग्लैंड था। इंग्लैंड में सब्जी की तरह फिल्में खरीदी जाती थी, साइलेंट फिल्में। तो जापान के जो लोग थे वो फिल्मों का चुनाव करते थे उस जमाने में भी, और उनके यहाँ बहुत चुनी हुई फिल्में आती थी जापान में जो दिखाई गई उस समय। लेकिन हमारे यहाँ जितनी फिल्में, कुल मिला के हुआ ये कि 1910 में जितनी भी फिल्में लगती थी, सब फिल्में दादा साहब फाल्के देख रहे थे, भले ही वो कैसे ही देखें उसे, जो कि उस जमाने के हिसाब से बड़ा महंगा सौदा था। और फिर धीरे धीरे उन्होंने 1911 में एक कैमरा खरीदने की बात सोची। तब तक बम्बई में एक भाटवड़ेकर थे, दादा सावे, और उन्हीं के पास कैमरा था। और उस जमाने में शायद स्टिल फोटोग्राफी का बहुत प्रचलन रहा होगा। जो अमीर लोग थे वो स्टिल फोटोग्राफ वगैरह अपने खिंचवाना पसंद करते थे। लेकिन दादा साहब फाल्के ने ये निर्णय लिया कि वो इंग्लैंड में जाकर और कैमरा खरीद कर लाएंगे। और इसके लिए उन्होंने अपनी बीवी के गहने रखे, गिरवी रखे या जैसे भी, और इससे उन्हें 10,000 रुपए रकम ली। और उसके बाद वो लंदन गए और वहां जाकर उन्होंने ये सब चीजें हमें हरिश्चंद्र की फैक्ट्री में, जो परेश मुकाशी की फिल्म है, वो देखने को मिल रही हैं। और ये बड़ी ठीक ठीक उन्होंने उससे दिखाया है और एक कमी पूरी की है ताकि हम दादा साहब फाल्के के बारे में जान सकें। लेकिन मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा बहुत मुझे जो जानकारी जितनी भी मैंने की है वो मैंने
ट्रेसिंग फाल्के जो कमल स्वरूप की पुस्तक है वो पढ़कर थोड़ा प्राप्त की है, थोड़ी जानकारी मुझे वहां से ही जानकारी मिली है। क्योंकि अगर आप दादा साहब फाल्के के बारे में जानना चाहें तो ट्रेसिंग फाल्के पुस्तक पढ़ना बहुत उपयुक्त होगा, और वो एक अच्छी पुस्तक उन्होंने तैयार की है। वो पुस्तक लगभग 2000 में उन्होंने 2008-9 के करीब उन्होंने बनानी शुरू की थी, या उससे भी पहले, और उसमें वो काफी लगे रहे। और क्योंकि पुस्तक थोड़ी महंगी थी, उसकी छपाई थोड़ी अलग थी, तो वो हमारे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने वो पुस्तक छापी है, और बड़े अच्छे ढंग से छापी है। और वो 2013 में पब्लिश हुई, और 2013 में ही कमल स्वरूप की फिल्म रंगभूमि भी तैयार हो गए, हमें देखने को मिली। रंगभूमि में भी उन्होंने दादा साहब फाल्के का काशी प्रवास जो है उससे बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। तो हम कमल स्वरूप के ऋणी हैं कि उन्होंने हमें दादा साहब फाल्के के बारे में विस्तार से बताया। कुल मिला के पूरी पुस्तक जो है वो एक तरह से हिंदी में ही है, लेकिन क्योंकि देवनागरी वगैरह, हिंदी तो लोग समझ लेते हैं लेकिन देवनागरी लिपि की समस्या काफी रहती है, तो वो रोमन में है, एक तरह से रोमन में लिखी है, और उसमें हिंदी की बहुत ज्यादा संवाद है, हिंदी की में इस तरह से है। और उसमें दादा साहब फाल्के के बारे में बहुत गहरी जानकारी है, और उस मिलियू की सारी जानकारी है जिसमें 1910 या 1911 में दादा साहब फाल्के रह रहे थे बम्बई में। और बम्बई में रहकर जो एक पूरा, कह सकते हैं, दृश्य माध्यम का जो एक था बात, लेकिन फिर उन्होंने संक्षेप में कहें तो उन्होंने फिर हमारे राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई। अब राजा हरिश्चंद्र भी वो नाटक ही था जो चल रहा था वहाँ बम्बई में उस समय, और उस पर आधारित उन्होंने फिल्म बनाई। लेकिन जब हम उस फिल्म के कुछ टुकड़े देखते हैं जो हमें आर्काइव से मिले हैं या आर्काइव ने संजो कर रखे हैं, और उन्हें थोड़ा री एडिट या संकलित करके जो भी है, तो उससे पता चलता है कि वो एक मौलिक फिल्मकार थे। वो कोई घटनाओं को सिर्फ कैमरा में नहीं कर रहे थे, बल्कि जो फिल्म की मूल जरूरत है उसे उन्होंने उसी समय समझ लिया था कि कैमरा के लिए आ, हमने जो कुछ भी आएगा वो कैमरा के लिए होगा, उसे कैमरा के लिए संयोजित किया जाएगा। और उस ढंग के उनके शॉट हैं भी, जब वो लोग आते हैं और थोड़ा पहाड़ उतरते हैं, इस ढंग से वो उसमें गत्यात्मकता और लय हमें देखने को मिलती है, जो हमें शायद बहुत ज्यादा मिलती जब हम, अगर हमारे पास उस समय की कुछ फिल्में और भी होती तो हम देख पाते। जैसे हम आज ग्रिफिथ की स्टडी करते हैं या ग्रिफिथ की लगभग पूजा से करते हैं कि भाई वो एक महान फिल्मकार थे, जो कि वो थे भी, क्योंकि उनकी फिल्में उपलब्ध हैं, क्योंकि उनकी फिल्में हमने देखी। लेकिन जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है वो भी, जो उन्होंने चुना सब्जेक्ट, और वो भी बहुत अच्छी नाटकीयता जिसे कहते हैं। हमारा जो सिनेमा शुरू हुआ वो नाटकीयता क्या जो प्रभाव है वहीं से आरंभ होता है। कल्पना कीजिए कि एक पिता है और उसके वो शमशान घाट में है, और उसका बेटा जलाने के लिए उसकी पत्नी लाई है, और वो कहता है कि नहीं, आप इसे नहीं जला सकते जब तक आप शुल्क नहीं दे देते। तो ये जो ड्रामेटिक मोमेंट है उसे दादा साहब फाल्के ने क्रिएट किया, और उसे, उसका एक चित्र बड़ा अच्छा कमल स्वरूप की पुस्तक में है, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने उसे दिखाया है। तो इस तरह हमारा सिनेमा का प्रवास आरंभ हुआ, और दादा साहब फाल्के जो थे वो आरंभ से ही एक फिल्मकार की तरह से ही उन्होंने बिहेव किया। जबकि फिल्म का, आप जानते हैं, फिल्म में पैसे खर्च होते हैं, और
थोड़ा पूंजीपतियों से मदद लेनी पड़ती है। तो उनके जो साथी थे, जो 5 लोग थे उनके साथ आरंभ की जो उन्होंने फिल्में बनाई 1913 में, 14, 15, 16 में, वो फाल्के एंड कंपनी से बनी। और फाल्के एंड कंपनी में फाल्के ही मुख्य थे, और इसलिए ये फिल्में बनती रही। लेकिन उस जमाने में भी आप ये समझिए कि एक साल में एक फिल्म बनाना कोई बहुत फायदे का काम नहीं है, भले ही वो कितना ही कमाए। तो जी, अब ठीक है, कोई और आ गए हो तो मैं अपना बीच में। जी, हाँ जी, ठीक। मनमोहन चड्ढा जी के पास तो पूरा फिल्मों का इतिहास है, और हम उनसे जितना चाहें सुन सकते हैं। उन्हें सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। हम फिर आपके पास आएंगे मनमोहन चड्ढा जी। अभी आशीष कुमार जी कुछ पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद विजय जी। जी, चड्ढा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। सबसे अच्छी बात तो ये है कि भारतीय सिनेमा में, या सिनेमा में जो कहते हैं ड्रामा का इम्पोर्टेंस क्या है, जब सिनेमा की नींव पड़ रही थी और वो किस तरह से डिफाइन हो रहा था, हमने बल्कि बातचीत भी इसलिए रखी थी, उन डायरेक्टर्स के बारे में बातचीत हम कर रहे हैं जिन्होंने सिनेमा को शेप दिया, या इंडियन सिनेमा को एक तरह से कह लीजिए शेप दिया। तो उन्होंने दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र, उसका जिक्र किया, और वो बता रहे थे कि कितना ड्रामा है उस पर्टिकुलर स्टोरी में, जो मैथोलॉजिकल स्टोरी है उसमें एक सिर्फ कितना ड्रामा है, और इसीलिए उसको बड़ा एप्ट समझा गया एक पहला सिनेमा बनाने के लिए भारत का। तो वो हमारे फोक कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज के वैल्यूज से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए उस सिनेमा को इतना देखा गया, सराहा गया, और वहीं से बुनियाद पड़ गई भारतीय सिनेमा में जो ड्रामा, मेलोड्रामा, जो कुछ भी जो चीज़ें लगातार ओवर द ईयर्स फ्लरिश करती गई। तो बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। और इसके पहले अमिताभ आकाश नाग साहब बोल रहे थे, जिन्होंने हाल ही में अभी पिछले साल तपन सिन्हा पे किताब लिखी है, बहुत बेहतरीन किताब, जो कि तपन सिन्हा के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर को इत्तेफाक से होता है, उसी दिन रिलीज हुई थी, और बहुत बेहतरीन किताब है वो। और तपन सिन्हा का सिनेमा, जो कि एक बंगाली फिल्म मेकर थे मूलतः, काफ़ी मुझे लगता है कि अनदेखा रह गया। तपन सिन्हा के बारे में असल में बंगाली फिल्म मेकर होने की वजह से भी मुझे लगता है बंगाली वर्ल्ड में, नाग साहब भी उससे एग्री करेंगे कि जब बंगाली फिल्मों की बात होती है तो सत्यजीत राय, मृणाल सेन और ऋतिक घटक से आगे हम कभी अक्सर बढ़ नहीं पाते हैं, या उसके बियॉन्ड देख नहीं पाते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। हालांकि एक परसेप्शन है कि हाँ, बंगाली कल्चर बहुत रिच है, सिनेमा बहुत रिच है, जिसने एक तरह से लीड किया है इंडियन सिनेमा को। लेकिन तपन सिन्हा को मुझे लगता है, या उनके सिनेमा को उनका ड्यू इस तरह से मिला नहीं है। और हिंदी दर्शकों के लिए तो कुछ गिनी चुनी फिल्में हैं जिनको वो वही दर्शक जानते हैं जो सिनेमा के बारे में ज़्यादा जानते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं। मसलन एक डॉक्टर की मौत, जो कि बहुत चर्चित फिल्म रही है और बहुत ही मास्टरपीस रही है। और मुझे याद है कि 70 के दशक में जब हम छोटे हुआ करते थे, उस समय एक फिल्म आई थी सफ़ेद हाथी, जो कि बहुत चर्चित हुई थी तपन सिन्हा की। तो हिंदी पट्टी में वो एक फिल्म जिसके जरिए तपन सिन्हा का नाम काफ़ी जाना जाता था। और उस ज़माने में जबकि सूचना के स्रोत बहुत कम थे, तो किसी ने ये भी बता दिया था कि भाई क्योंकि फिल्म में हीरो शत्रुघ्न सिन्हा है, किसी ने बताया कि भाई ये शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े भाई हैं, तो जो कि विच इज़ नॉट द रियलिटी। तो लेकिन तपन सिन्हा का सिनेमा कई लिहाज से बहुत खास है। हमने तपन सिन्हा के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे डाला था। मैं उसका एक छोटा सा पीस पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि जो दर्शक हमारा ये सेशन देख रहे हैं उनको थोड़ा सा पता लग सके। जिंदगी जिंदगी, सगीना, सफ़ेद हाथी, आदमी और औरत, जो कि टेलीफिल्म थी, एक डॉक्टर की मौत जैसी उनकी हिंदी फिल्मों के विषय गांव में जातिवाद, मजदूरों के अधिकार और संघर्ष, एक वैज्ञानिक डॉक्टर का संघर्ष और उसके विभाग की अंदरूनी राजनीति जैसे मुद्दे रहे हैं। जबकि बंगाली फिल्मों में ये विविधता और भी बढ़ जाती है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि सलीना से पहले उन्होंने बांग्ला में सलीना महतो बनाई थी। आपको शायद हम सबको पता होगा कि सलीना महतो रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानी का इसके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानी पे काबुली वाला पर आधारित बिमल रॉय और हेमंत गुप्ता की फिल्म। इसके बाद जी कुछ बोल रहे थे अमिताभ साहब? Sorry, I thought we were saying something. No. Yeah, I'm reading out further. 1968 की बनाई फिल्म आपन जन थी, एक राजनीतिक प्रतीकात्मक फिल्म थी तपन सिन्हा की,
जिसपे हिंदी में मेरे अपने बनाई थी गुलजार ने, और अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू उनका मेरे अपने ही था, गुलजार साहब का, जो कि बहुत जाने माने शायर हैं, कवि हैं, फिल्म मेकर हैं। तो मेरे अपने जिस फिल्म पे आधारित थी वो आपन जन थी, तपन सिन्हा की ही। 1960 में रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानी पे बनाई तपन सिन्हा की फिल्म थी क्षुदिता पाषाण। गुलजार ने उसका रूपांतरण किया था 1990 में लेकिन नाम की फिल्म बनाई थी, जिसमें विनोद खन्ना ने डिम्पल कापड़िया थी। बहुत चर्चित फिल्म हुई थी, संगीत बहुत अच्छा था उसका हृदयनाथ मंगेशकर का। लता मंगेशकर ने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी, गुलजार ने डायरेक्ट की थी। 1968 में ही तपन सिन्हा की बनाई फिल्म गल्पा होलियो साची, इसको हिंदी में ऋषिकेश मुखर्जी ने बावर्ची के नाम से फिल्म बनाई 1972 में। तो बावर्ची की हिंदी वाली कहानी भी तपन बाबू ने ही लिखी थी, और एक डॉक्टर की मौत में पंकज कपूर का अभिनय बहुत मील का पत्थर माना जाता है। हालांकि बहुत योग्यतम दावेदारी के बावजूद उसको नेशनल अवार्ड नहीं मिल पाया था उस साल। तो ये मैं एक लेख का अंश पढ़ रहा था, सिर्फ ये बताने के लिए हिंदी के दर्शकों को कि तपन सिन्हा कितने एक जरूरी फिल्मकार रहे हैं, और उनके सरोकार भी समाज के बहुत ही जरूरी मुद्दों से जुड़े रहे हैं। तो कला में जहां उन्होंने एक बहुत ही लंबी लकीर खींची है कलात्मक पहलू में उनके सिनेमा ने, वहीं उनका सोशल कंसर्न या सामाजिक सरोकार भी बहुत ही ज्यादा बृहद और बहुत ही विशाल रहा है। ओवर टू यू विजय जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आपने जो पढ़ा उससे सच में हिंदी जो यहाँ पर दर्शक हमारे उपस्थित हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये। मैं चाहूंगी कि हमारे दो और वक्ता नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, तो मिस्टर नाग से मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा सा और तपन सिन्हा जी के विषय में बताएं हमें, और उसके बाद हम समाप्त करना चाहेंगे। Especially the films I mentioned, Mr. Amitabh Nath. Sorry? Especially the films I just mentioned, like एक डॉक्टर की मौत and क्षुदिता पाषाण, and you know, and yes, see the Kshudita Pashan was made in 1960. It was Rabindranath Thakur's centenary. If you remember, Satyajit Ray made Samapti, Teen Konna, the three daughters, as a centenary tribute, and Tapan Singh made Kshudita Pashan. And Ek Doctor Ki Maut, I think, is in 1991, which is roughly 30 years between the two films. If we look at the films from the late 70s or the late 60s and 70s, the mystery why Tapan Singh has been forgotten, not only in the national scale but also within the Bengali culture, is precisely what I feel is that these films, also in Dr. Ki Maut, you will find that the individual wins, the individual triumphs at the end. If you watch Golpo Holo Shotti, whose Hindi remake is Bawarchi, so I think the viewers may relate with it. There also there is one individual who is almost symbolic, right? He is not a real person. He comes and he makes life in a family better than what it used to be, and then he leaves. So Tapan Singh's philosophy was always the triumph of the individual over the triumph of the collective. In Bengal, the popular political belief amongst the intellectuals was Marxism, which always upholds the triumph of the collective over the triumph of the individual. So he was having a philosophy through his films which is completely diametrically opposite to the popular, not the popular mainstream, but the popular intellectual philosophical stance. And that is mainly the reason why most of the film society, there were a lot of film societies in 1960s and 70s. None of them had him as the cover page in any of their issues. They had only after he passed away. Or I think after he got the Dada Shaheb. So that is in 2006. So he stopped making films in 2000. So from the entire period of time, his films did not get the necessary leverage from the film society, film critics. And that is the reason you find very less literature on him. You will get literature on Satyajit Ray, you will get
loads of literature on Satyajit Ray. You will get some on Ritwik Ghatak and some on Mrinal Sen, but you will find absolutely nothing on Tapan Singh. Very few in Bangla as well, which is interesting. There is only 2 or 3 books, mostly written by him only as memoirs. So none of the film critics thought it necessary to, even in Bangla, write on Tapan Singh's films, which is very unfortunate. And the reason I brought up Hrishikesh Mukherjee and Bimal Roy's reference is he started with New Theatres, which was very, very important film studio, like the Prabhat Studio and the Gemini Studios in Pune and Chennai, respectively. So he started with New Theatres in 1946. And then he moved to another studio in 1948, and then he went to Pinewood Studios in London for his film learning, technique of film learning. But he came back and made films in Bangla, in Kolkata. Why it is important is that his friends were Hrishikesh Mukherjee, Navendra Chatterjee, and Solil Choudhury, Navendra Ghosh, Solil Choudhury. His mentor of sorts was Bimal Roy, who all moved to Bombay because they felt that because of the partition of Bengal, the total market has become half. Actually, less than half. The West Bengal part was less than what is Bangladesh in terms of the population and area. So the moment the partition of Bengal happened, and New Theatres, if you see the decline of New Theatres mostly happened around the same time, from the mid 40s till the late 50s. They were all done and dusted. So these people who are New Theatres people, who are popular filmmakers, they all moved to Bombay because the money was there. But Tapan Singh did not. So he is very unique in that sense as well. He also, unlike Satyajit Ray or Ritwik Ghatak or Mrinal Sen, these 3 did not start with New Theatres. They had their own separate way of coming into film. Tapan Singh started with New Theatres, but he did not leave Bangla language and Kolkata, the city, for greener pastures. It's unfortunate more because his own Aponjon had neglected him and forgotten him. Forget about the greater Indian audience who had a difficulty in understanding the language, and we don't have a culture of watching films in subtitles, right? So I think that is the reason why we should. And Manmohan Chaddaji was mentioning about films which were lost in 1930s and 40s. I can tell many of Tapan Singh's films of the 1950s are also lost. There is a film of Torun Majumdar which was made in 1970s, which is lost. So we absolutely don't have this culture of archival. It's all individual effort and interest. I think आप एकदम सही कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. हम चीजों को नष्ट करने में एक्सपर्ट हैं, उसे प्रिजर्व करने में नहीं. मेरे 2 फ्रेंड हैं, दे आर फिजिसिस्ट. बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर उन्होंने काम किया है, लेकिन वो अपने खाली समय में अपना कैमरा लेकर के, वो केरलाइट है, केरल में गांव में जाकर के वो जितने भी लोकल कल्चर है उसको वो रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो ऐसा बहुत कम लोग कर रहे हैं, जैसे आपने इन पर काम किया है तपन सिन्हा पर. ऐसे कुछ लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए प्रिजर्वेशन का वो हमारे यहाँ सच में नहीं हो रहा है, और उसका खामियाजा हम तो भुगतेंगे ही, आगे आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है. ये सही बात है, विचार करना चाहिए. जी. Just one thing I want to add, Sharma ji, here, because Mr. Singh mentioned about Khudito Pashan. Now, see, the problem if we don't restore is this. Now, I can tell you, like, what innovations he had done in Khudito Pashan. But if you don't get a good print to watch it, you will find that whatever I am telling is absolutely fake. Because you cannot see what I am telling you, because the prints which are available are so bad that whatever lighting he tried doing in that film are not coming through. Like the films which are restored by either the foreigners or even our national film heritage foundations and stuff, there you will find out the difference. I was just watching this Aurobindo's Thampu, which was I think restored. So you can see the difference. How much you say about the lighting and the shadows and stuff, those will not come out if the print is bad. So those who are writing, we are doing only half of the work.
But if the films are not available, then this is almost like Greek and Latin, because people will not be able to watch these films anyway. You are absolutely right. Now I think our two speakers are not able to join. Amrendra Sinha is having network problem, and Amitabh Ghosh is in some remote village doing his social work. So we are missing them, but we are happy to have here two speakers who really gave us very valuable thoughts about films. ये हमारी 113वीं गोष्ठी है सृजन संवाद की, और जैसा कि मैंने बताया हम लोग एक महीने लिटरेचर पर काम करते हैं, एक महीना सिनेमा पर काम करते हैं, और तीसरे महीने हम लोग कलाओं पर काम करते हैं। तो आज हमारा सिनेमा पर कार्यक्रम था, और इसमें हम लोगों ने लेजेंड्स ऑफ सिनेमा पर बात शुरू की है, जिसमें पहले हम लोगों ने कुछ संगीतकारों पर बात की थी, और उसकी ये दूसरी कड़ी है जिसमें हम फिल्म निर्देशकों पर बात कर रहे हैं। आज के दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इको हो रहा है, आप लोगों को भी इको सुनाई दे रहा है? आप अपना वॉल्यूम कम कर लीजिए, जो वहाँ आउटपुट आ रहे हैं जहाँ भी, उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए। ओके, तो हम लोग अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। सृजन संवाद के 100 से ऊपर मेंबर्स हैं, उसमें से कुछ मेंबर्स बहुत सक्रिय हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन पर मैं हमेशा डिपेंड कर सकती हूँ। उसमें से एक है डॉक्टर नेहा तिवारी, जो कि आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर नेहा तिवारी वैसे तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, लेकिन HOD है वो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की, और फिल्मों से उनका बहुत गहरा जुड़ाव है। 65th जो 65वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी थी, उसके लिए जो सिनेमा इन राइटिंग की जूरी थी, उसमें वो जूरी मेंबर भी रही हैं। उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था इंडिया टुडे से, और इंडिया टुडे छोड़ करके वो एकेडमिक्स में आ गए हैं। बहुत सारे पेपर्स उन्होंने लिखे हैं, एकेडमिक पेपर्स प्रस्तुत किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में। इस समय वो छुटपुट आर्टिकल लिखने के अलावा 25 फिल्म डायरेक्टर्स पर काम करने में जुटी हुई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वो इस किताब को ले आएंगी। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम संपन्न करें। डॉक्टर नेहा तिवारी। धन्यवाद डॉक्टर विजय शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी इस पूरे सृजन संवाद के इस कार्यक्रम को, because this has been the amazing discussion on two directors by two eminent film scholars. अगर आज हम देखें तो दो ऐसे महत्वपूर्ण लोगों पर बात हो रही थी जो शायद समय के साथ गुमनामी के कगार पर चले जाते, लेकिन आप जैसे लोगों ने जो सिनेमा से प्यार करते हैं, जो सिनेमा को एक अध्ययन के रूप में देखते हैं, खोज करते हैं चीज़ों की, और इसलिए शायद मुझे लगता है कि ये दोनों ही फिल्म निर्देशक संरक्षित हो पाए और हमारे तमाम दर्शक आज उनके बारे में जान पा रहे हैं। अगर मैं धन्यवाद दूँ मनमोहन चड्ढा जी को, तो इसलिए भी कि इस उम्र में उन्होंने हमारे सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है कि अगर आप सिनेमा से प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है, तो आप कितने गहरे उस समुद्र में उतर सकते हैं और कैसे मोती बुन सकते हैं, और वो किताब की शक्ल में, संवाद की शक्ल में और लेक्चर्स की शक्ल में हमारे सामने आ सकता है। तो वो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ श्री मनमोहन जी।
स्पेशली आज आपने जिन चीज़ों के बारे में हमें बताया दादा साहब फाल्के साहब के बारे में, न सिर्फ ये कि उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है, बल्कि आपने रोशनी डाली उन चीज़ों पर कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थी जिनमें वो सिनेमा की तरफ जुड़े। क्या वो एक प्रारब्ध था कि उनको जुड़ना ही था, या वाकई उनका एक सिनेमा के प्रति प्रेम था, और फिर कैसे एक सिलसिला निकला जो एक जिसे हम कहेंगे कि भागीरथ प्रयास हुआ, सिनेमा आया, और उसके बाद सिनेमा की गंगा जो है वो अविरल बह रही है आज की तारीख में हम देखते हैं। तो हम उन्हें पिता माने या ना माने भारतीय सिनेमा का, वो विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन निसंदेह ये बिल्कुल भी विवाद का विषय नहीं है। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान भारतीय सिनेमा में रहा है, और जिसकी वजह से हम आज इसे इतने विशाल रूप में देख रहे हैं। अगर मैं वक्तव्य की बात करूं श्री अमिताभ आकाश नाग जी की, तो निश्चित रूप से मैं उन्हें धन्यवाद इसलिए भी दूंगी कि एक निर्देशक पर पूरी किताब लिखना निश्चित रूप से अनुसंधान का विषय है, गहरे अनुसंधान का विषय है, और वो भी एक ऐसे निर्देशक को चुनना who has been very less popular, and he himself has this belief that he has not been given due acknowledgement in the history of Indian cinema. So selecting that kind of person who is not popular and then researching on it and then making it possible to come out with a book and to make him, establish him as one of the prominent writers is, I think, is a huge contribution which Mr. Akash Nag has made to Indian cinema. तपन सिन्हा जी को हम लोग जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे निर्देशक के रूप में है, लेकिन हमारे सभी वक्ताओं ने इस बात पर जरूर दृष्टि डाली है कि वो सहज लोगों में, सहज दर्शकों में, एक आम दर्शक में, सामान्य दर्शक में वो शायद वो पैठ नहीं बना सके। पॉपुलर होने के बावजूद उन्हें एक गंभीर निर्देशक जिस पर अध्ययन किया जाए उस तरह से। तो ये जो किताब आप लेकर आए हैं अमिताभ जी, एंड आज आपका जो वक्तव्य रहा है, निश्चित रूप से ये हमें उस दिशा में लेकर जाएगा कि जहाँ हम तपन सिन्हा जी के सिनेमा को, चाहे वो हिंदी का सिनेमा हो या बांग्ला का सिनेमा हो, हम एक बार फिर उस यात्रा में जाएंगे, उनका सिनेमा देखेंगे और उसको गहरे समझने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का कॉम्बिनेशन मैं जब विचार कर रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि मनमोहन चड्ढा जी ने जिस तरह से बात कही कि कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, घरेलू जो राजनीति थी, घरेलू जो समस्या थी, विचार थी, दबाव था, उसकी वजह से दादा साहब फाल्के जो है वो सिनेमा की ओर मुड़ते हैं। और वहीं जब अमिताभ जी बात कर रहे थे तो मैं सोच रही थी कि वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने सामने एक राजनीति देख रहा है, खास किस्म की राजनीति देख रहा है, और उस पर विचार करने के बाद जो उसकी राजनीति है, जो उसके विचार हैं, राजनीतिक विचार, उसके विचार हैं इस दुनिया को लेकर, उनको सिनेमा के माध्यम से लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिनेमा और राजनीति है, जो सिनेमा और विचारधाराएं हैं, वो आपस में मिलती हैं और मिलकर सिनेमा को उस गहराई तक ले जाती हैं जिसकी तह तक पहुंचने का काम मुझे लगता है कि हर दर्शक का है, हर स्कॉलर का है, और हर उस गंभीर व्यक्ति का है जो सिनेमा को भारतीय संस्कृति की या वैश्विक संस्कृति के एक हिस्से के रूप में देखता है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आशीष जी को कि वो आगे बढ़कर आए, और हम सभी जानते हैं कि वो न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन से हैं और उन्होंने कोलैबोरेट किया सृजन संवाद के साथ, और उसको और व्यापक स्तर पर बहुत सारे लोगों के बीच ले जाने की कोशिश की। लगातार वो सिनेमा पे बेहतरीन काम कर रहे हैं, और इस तरह से उसे जो विभिन्न शहरों में काम कर रही संस्थाएं हैं उनको इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना और उसको एक वैश्विक पटल पर ले जाना, मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत मुझे लगता है धन्यवाद के मैं कहूँगी कि उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाए सृजन संवाद के तमाम सदस्यों की ओर से वो कम होगा। तो आशीष जी, आपको विशेष धन्यवाद है कि आप हम सबसे जुड़े, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह का सहयोग, इस तरह का मार्गदर्शन, इस तरह के जुड़ाव हम सबके बीच होते रहेंगे।
डॉक्टर विजय शर्मा जी को भी धन्यवाद देना बनता है, क्योंकि सृजन संवाद के संसार की रचना उन्होंने ही की है। कभी इस बात की चिंता नहीं की कि इसको रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, इस बात की भी चिंता नहीं की कि 2 लोग सुनने के लिए जुटे हैं या 200 लोग, इस बात की भी चिंता नहीं की कि बोलने वाला बहुत युवा है या बहुत अनुभवी, लेकिन जो उन्हें लगा कि विषय के साथ न्याय कर सकेगा, जो उन्हें लगा कि इसे और आगे ले जाएगा, उसको वो अपने सृजन संवाद से जोड़ती चली गई। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि सृजन संवाद व्यापक हो रहा है, पसर रहा है, जिसे हम कहेंगे, अपने पांव भी फैला रहा है। और मुझे लगता है कि सिनेमा, साहित्य, कला, ये जितने भी विधाएं हैं, इन सबको जोड़कर एक मंच पर लाना बड़ा काम है। तो मैं उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद इसलिए भी कि उन्हें मुझे अवसर दिया कि मैं इन तमाम गुणी जनों के बीच, बड़े लोगों के बीच, विद्वत जनों के बीच कुछ भी कह सकूं, और इसके लिए, इस अवसर के लिए मैं उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम के समापन में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सृजन संवाद एक कठिन संवाद है, क्योंकि सृजन की प्रक्रिया अपने आप में बहुत कठिन है। चाहे वो पेंटिंग हम रच रहे हों, एक कविता रच रहे हों, एक पुस्तक रच रहे हों, एक सिनेमा रच रहे हों, इस कठिन प्रक्रिया पर हम जितनी बात करेंगे, उतना ही शायद हम इसके नए नए पन्ने खोल पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि आखिर किस प्रक्रिया से गुजरकर ये सृजन होता है। और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसी चीज संरक्षित कर पाएंगे जो उन्हें वो सुअवसर देगी, वो सहयोग देगी, जिसकी उम्मीद हम पिछली पीढ़ी से करते थे और शायद वो पूरी नहीं हो पाई या कम ही हो पाई। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं विराम लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। मैं अपने एक और सदस्य का धन्यवाद करना चाहूंगी, परमानंद रमन, जो हमारे लिए पोस्टर बनाने का काम करते हैं। साथ ही साथ मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मीडिया का हमारे लिए बहुत ही सहयोगी रहा है। जब भी हम कुछ भी खबर देते हैं सृजन संवाद से संबंधित, तो वो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, और लोकल अखबार हमेशा उसे प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। तो इनके साथ ही मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने दर्शक हमारे साथ हैं, सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आशीष जी का खास तौर से धन्यवाद, और आगे भी आप सबका सहयोग बना रहेगा। ऐसी शुभकामना के साथ हम आज का कार्यक्रम, and I'm especially thankful to all of you for sparing so much of your precious time. Thank you so much. I hope we'll keep going on with the series like this. Thank you so much. Thank you, everybody. Bye-bye.